Hi everyone. So, on the behalf of an academy, I welcome you all over here on this channel, which is Cat for MBA. My name is Gaurav Bhatia, and I'm going to start with that pronoun case second. As I told you earlier, we already had one lecture covered up based upon pronoun case. If you are new, if you are looking, if you want to improve your concepts based upon pronoun, please go to the lecture first way of pronoun case. Okay, so I'm going to proceed with the same. My name is Gaurav Bhatia, as you already know, and I have cleared CAT 2019 with 98th percentile. Along with that, I have an experience of more than 20 years, and I have cleared numerous papers. Numerous means numerous, like many papers. That is the reason that I am here. If you people want to get sheets, if you want to get regular updates, if you want to get PDFs, if you want to get all that, whatever I teach over here, if you get that soft copy of the same, please join me on the Telegram app, which is Gaurav Bhatiyan Academy. You just have to open your Telegram, and on Telegram you will have to type in you will have to type in what? You'll have to type in Gaurav Bhatia Unacademy. Okay, you have to type in what? You have to type in Gaurav Bhatia Unacademy, and you're done. You're going to land upon my channel, and over there you're going to find everything. आप लोगों को वहाँ पर सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी. ध्यान रखना है इस वाली बात. And please enroll now if you want, if you people are preparing for CAT 2021, or if you people are aiming for CAT 2022, or if you people are aiming for CAT 2023. So you should avail our plus courses because our plus courses have ample of material. We have that we give you people classes which are based upon concepts. You're going to find these courses over there. There is this, from 6th of October onwards, we are starting with Last Mile to Get, which is on 10 for CAT 2021. This is dynamic batch for CAT 2022 and other management entrance tests, which is in Hindi. The specialty of this particular batch is it is in Hindi. And from 9th October onwards, we are also starting for Kickstart batch for CMAT 2022. So this is again for CAT 2022 and other exams, which is CMAT. If you are preparing for CMAT, MAT, ZATMA, and NMAT, etc., you people are preparing for these all exams. This particular batch is meant for you. And look at our plus subscription. We have these three subscriptions, which is one is for 24 months, one is of 18 months, and one is for 6 months. So if you people are preparing for CAT 2021, this particular subscription is meant for you. If people are preparing for 18 months, this particular for CAT 2022, then this particular subscription is meant for you. And if you're a newbie, if you want to prepare for 2023, okay, so in that case, if you're an early bird, in that case, this particular batch is meant for you. You're going to get a whooping 10% off if you're going to apply my code, which is CADGAR. आप लोगों को क्या करना है? You just have to apply my code, which is CADGAR. CADGARV, CADGAR. You just have to apply it, and you're going to get 10% directly, 10% off. You're going to get it. Remember that. These are our iconic batches. If you are at your home, if you what the okay. These are what? These are our iconic batches. If you want to sit at your home and you want to save yourself from, if you want to save yourself from the population, from the pollution outside, from the negativities, negative vibes outside, from everything negative which is there outside, this particular batch is meant for you. You're going to get everything. Your doubts will be cleared by experienced by excellent faculties at the comfort of your home. You're going to take one-on-one live sessions with the faculties. So look, this is something like you're going to get many benefits of. And all the faculties that we have, they are already very much they are that very they are excellent faculties, right? So this particular thing is meant for you. And again, we have cat notes on the go. It means you can access all our notes without carrying them, without just having any sort of baggage with you. You're not supposed to keep any bag or baggage with you. You are going to have these notes on your phone. You don't have to do anything. If whether you are traveling, whether you are just eating food, whether you are roaming around, you can just access the notes as per your own comfort. Okay, so in our last lecture, what did we do? We do subjective case and objective case. We started with this. We started with personal pronoun, and I told you about that case. Okay, na? And we did subjective case and objective case. If you have any issue, you can directly go to my previous lecture and you can search over there for the same. Okay. Now, today we are going to start with what? We are going to start with, first of all, we are going to teach you what is the difference between who and which.
And then I'm going to teach you that the possessive case. I'm going to give you what? I'm going to give you an idea about possessive case. What is possessive case and how are we going to use it? So first thing first, who and which. What is the difference between who and which? So look, in science or in social science, we always read about two things, which is human beings and non-human beings. Sorry, living things and non-living things. We have this. Okay, we have what? We have living things and non-living things. From there, I took that concept and I changed it. I modified it according to English language, and I introduced the concept of human beings. I introduced the concept of human beings and non-human beings. And what? And non-human beings. Okay, non-human beings. So look, ultimately, what am I diversifying in? I'm diversifying. I just divided the classes into two groups. One is human beings, like you are a human being, I am a human being. Okay. Another group is non-human beings. We are going to count every creature in that non-human beings. Let us talk about trees, be it that animals, bats, cat, dog, fish, tortoise, anything, anything that you have. We are going to count it under non-human being, and we are going to use what? We are going to use which with. We are going to use what? We are going to use which with. ठीक है अपन लोग किसका use करेंगे? We are going to use what? We are going to use which with it. So this is first thing. Now let us come towards possessive adjective case and let us have a glance over it. In the possessive case, we have again we have bifurcated possessive case into two parts. One is possessive adjective case and another one is possessive pronoun case. Okay, possessive case को अपन लोगों ने इन दो पार्ट्स के अंदर bifurcate करा है. कौन कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन केस. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं. अगर आप लोग पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हो तो देखो यहाँ पे आप लोग माई के साथ किसका यूज कर रहे हो? नाउन का. इन दोनों को जब आप लोगों ने आपस में ज्वाइन कर लिया, जब आप लोगों ने इनको दोनों को कंजक्ट कर लिया, तो आप लोगों के पास एक नया वर्ड आया विच इज व्हाट? विच इज माई. तो जो माई है ये किस में आता है? ये आता है आप लोगों के पजेसिव प्रोनाउन केस के. या फिर आप लोग वी का यूज कर सकते, यहाँ पे आवर आएगा. अगर आप लोग आवर का यूज करते हो और आवर के साथ आप लोग नाउन का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का आर्स. योर के साथ आप लोग नाउन का यूज करें तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम योर्स. हर के या साथ या हिज के साथ आप लोग नाउन का यूज करें तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स हिज. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप लोग देयर का यूज कर रहे हो, देयर के साथ आप लोग नाउन अटैच कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा देयर. तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स के साथ आप लोगों का जो नाउन है वो नाउन अटैच रहता है, ऑलरेडी नाउन अटैच रहता है. ठीक है. ये जो एस है, ये एस क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एस रिप्रेजेंट करता है नाउन को. ये एस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है. ध्यान रखना, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. एक होता है अपोस्ट्रोफी एस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो अपन लोग उनकी भी उसकी भी बात करें. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ पहले. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, एक बार पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं. मैं आप लोग को डिटेल के अंदर इसके बारे में समझाता हूँ. ठीक है. द काउंट ऑफ थ्री आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड. वी हैव वन, देन वी हैव टू, एंड देन वी हैव थ्री. तो देखो, हम लोग अगर बात करते हैं किसकी? पजेसिव प्रोनाउन की, विच इज व्हाट? माय, या फिर आवर, या फिर योर, या फिर हिज, हर, और क्या था? और था हमारे पास इट्स, देयर. ठीक है. तो ये सारे के सारे वर्ड्स किस में काउंट होते हैं? ये होते हैं आप लोग के पजेसिव प्रोनाउन के अंदर या पजेसिव एडजेक्टिव केस के अंदर. यार इनको एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? व्हाई आर दे कॉल्ड एडजेक्टिव? इनको अपन लोग एडजेक्टिव की तरह क्यों काउंट करें? क्योंकि इनका यूज हमेशा किसके पहले होता है? नाउन के पहले. इनका यूज हमेशा किसके पहले होता है? नाउन के पहले. ये क्या बताते हैं? ये नाउन की स्पेशलिटी बताते हैं. मान लीजिए अगर मैंने आप यहाँ पे लिखा माई डॉग, तो क्या हो रहा है? ये जो माई है, माई किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस डॉग को. ये बता रहा है कि जो डॉग है उस डॉग किसको बिलोंग करता है? तो डॉग किसको बिलोंग करता है? मेरे को. ये जो माई है, ये माई क्या हो गया? ये माई हो जाएगा आप लोगों का एडजेक्टिव. इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव ओवर हियर. लेकिन अल्टीमेटली ये है क्या? इट इज पजेसिव एडजेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. ये है क्या? ये है आप लोग का पजेसिव एडजेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. अब देखो, अगर हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं, तो हम लोग कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ, पजेसिव एडजेक्टिव्स हो चाहे आप लोग के पजेसिव प्रोनाउन केस हो, दोनों ही के साथ हम लोग कभी भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज बिल्कुल नहीं करते. ओके, एटलीस्ट अपन लोग अपोस्ट्रोफे का यूज, वी नेवर यूज apostrophe s और s के साथ apostrophe with possessive adjectives
or pronouns to show possession. Okay, so hundreds of people, basically not hundreds of people, are actually millions of people around the world, across the world, they commit this mistake and they remain confused between its and its. अगर आप लोगों भी इनमें से एक हो तो प्लीज चेक इट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स इट अपोस्ट्रोफी एस। मैंने अभी यहाँ पे ऊपर लिखा है कि आप लोग कभी भी एस के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज पजेसिव एडजेक्टिव्स या पजेसिव प्रोनाउन के साथ पोजेशन शो करने के लिए नहीं करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग इट के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करो, इट शोज व्हाट इट शोज इट इज। ये क्या होता है, ये होता है आप लोग का इट इज, ठीक है, दिस इज। और ये जो इट्स है, इट बिना अपोस्ट्रोफी एस के, ये क्या होता है, ये आप लोगों का शो करता है पोजेशन। इट शोज व्हाट इट शो पोजेशन, ठीक है, शो करता है आप लोग की पोजेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का पोजेशन। नाउ किसका, न्यूट्रल जेंडर का, क्या? तो अगर आप लोगों को कभी भी इट अपोस्ट्रोफी एस दे रखा हो तो नेवर प्रोनाउंस इट इट्स, इसको आप लोग कभी भी प्रोनाउंस इट्स नहीं करोगे। की जगह ट्राई करना कि आप लोग हमेशा इसको इट इज प्रोनाउंस करो। क्या प्रोनाउंस करो आप लोग हमेशा इसको इट इज प्रोनाउंस करो। आप लोग कभी भी इसको इट्स प्रोनाउंस मत करना, आप लोग इट इज प्रोनाउंस करना। अगर आप लोगों ने इट इज प्रोनाउंस करा तो आप लोगों की लाइफ जो है बहुत शॉर्ट हो जाएगी, बहुत बहुत अच्छे से चलेगी लाइफ, बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है ना, ईजी गोइंग लाइफ हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है। और देखते हैं अपन लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट और बात करते हैं अपन लोग। तो यही था आप लोग का पहली चीज, आप लोग इट्स का यूज करिए। मान लीजिए अगर आप लोग को योर दे रखा है तो योर के साथ आप लोग कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे। अगर आप लोग आवर दे रखा है तो आवर के साथ आप लोग कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे। नॉट गोइंग टू यूज अपोस्ट्रोफी एस विद एनी ऑफ देम। आप लोग को हर दे रखा हो तो हर के साथ भी आप लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे। दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है, हो गया। तो अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहला पॉइंट जो अपन लोगों ने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन के अंदर या पजेसिव एडजेक्टिव केस के अंदर, वो ये पढ़ा कि हम लोग कभी भी इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज एटलीस्ट पोजेशन दिखाने के लिए नहीं करते। जैसे आप लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हो इट के साथ, लेकिन वो पोजेशन शो नहीं कर रहा, वो क्या है, वो इट इज एन एब्रीविएशन फॉर इज, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और वहाँ पे गलतियाँ होती हैं एग्जाम के अंदर। बहुत बेसिक चीज़ है, अभी बहुत लग रहा होगा अरे यार बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये भी पढ़ने वाली बात थोड़ी है। जब एग्जाम होता है ना तो एग्जाम के अंदर अपन लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ का अपन लोग गलत करके आते हैं, वहाँ पे अपन लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इट के साथ अगर आप लोग को अपोस्ट्रोफी एस दे रखा हो तो आप लोग हमेशा उसको इट इज प्रोनाउंस करना, आप लोग कभी भी उसको इट्स प्रोनाउंस मत करना। यू आर नॉट सपोज टू प्रोनाउंस इट इट्स, आप लोग को उसको प्रोनाउंस नहीं करना है इट्स, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। The dog was the dog was wagging its tail. It is tail. When I stood in front of it. When I stood in front of it. जब मैं क्या करा तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, the dog was doing what, the dog was wagging its tail. So over here what am I using, the dog was doing what, the dog was wagging its tail. So this is inappropriate over here, it is not at all appropriate. I'm not going to use its tail over here. Instead of it what am I going to use, I'm going to use its. मैं यहाँ पे इट्स की जगह किसका यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा इट्स का, ठीक है। द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल, बिकॉज अपन लोग डॉग की टेल की बात करेंगे। जो टेल है, टेल किसकी है, इट इज पोजेस्ड बाय होम, इट इज पोजेस्ड बाय दिस डॉग। ये जो टेल है किसके द्वारा, किसका पोजेशन था, इट वॉज पोजेस्ड बाय दिस डॉग। सिंस इट वॉज द पोजेशन ऑफ डॉग, हम लोग यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज इट्स ओवर हियर। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। he concluded he did what, he concluded the letter, he concluded the letter by writing yours in the end. By writing what, by writing yours in the end. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपन लोग yours का यूज ही नहीं करेंगे भाई साहब। yours के साथ अपन लोग योर के साथ apostrophe s का यूज करते ही नहीं है। आप लोग तो लेटर लिखते होगे ना, अपन लोग एप्लीकेशन भी लिखते थे, तो एप्लीकेशन के अंदर अपन लोग क्या लिखते थे, yours faithfully। हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे yours faithfully या yours obediently या whatever you people wanted to write, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग कभी भी apostrophe s का यूज नहीं करते, ध्यान रखना। ये जो apostrophe s है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अपन लोग कभी भी possessive adjective के साथ apostrophe s का यूज possession दिखाने के लिए नहीं करेंगे। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।
If you want, you can take the screenshot of the same. At the count of 3, I'm going to change the slide. 1, and then we have 2, and then we have 3. अब देखो. Now there is one rule, and what is that rule? Try to understand what is that rule. अगर आप लोगों को क्या गिवन हो, अगर आप लोगों को कभी भी गिवन हो जीरंड, तो भाई ये जीरंड क्या होता है? व्हाट इज दिस जीरंड? अगर आप लोग जीरंड की बात करें तो जीरंड इज व्हाट? जीरंड इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है ना? जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है आप लोगों का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का तो यूज अपन लोग बहुत जगह करते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग. आई एम गोइंग. और एक आप लोगों को दे रखा है क्या? एक आप लोगों को गिवन है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर. स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये दे रखा है. तो यहाँ पे भी मैं किसका यूज कर रहा हूँ? व्हाट एम आई यूजिंग ओवर हियर? यहाँ पे भी मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर रहा हूँ. और इस वाले सेंटेंस में भी मैं किसका यूज कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का. तो क्या ये दोनों जीरंड हो गए? नहीं, ये दोनों जीरंड नहीं है. ध्यान देना, ये दोनों जीरंड नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो गोइंग है, इस गोइंग का यूज किसके साथ हो रहा है? इसका यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ. इस गोइंग का यूज किसके साथ हो रहा है? इसका यूज हो रहा है आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब के साथ. हम लोग इस गोइंग का यूज करें हेल्पिंग वर्ब के साथ. ठीक है, तो ये हो जाएगा. यहाँ पे अपन के पास क्या है? हम लोग यहाँ पे यूज करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का. ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या है? ये है आप लोगों की मेन वर्ब. ये क्या है? ये है आप लोगों की मेन वर्ब. और अगर अपन लोग बात करते हैं स्मोकिंग कॉजेस कैंसर की, तो जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या हो गया? ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसका यूज अपन लोग कैसे करें? एज नाउन. इसका यूज अपन लोग करें नाउन की तरह. तो जब आप लोग किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह करते हो, ठीक है ना? जब आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की तरह करोगे, तब वो क्या होता है? तब वो कहलाता है आप लोगों का जीरन. एट दैट मोमेंट ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आप लोग का जीरन. ध्यान रखना, ठीक है? जैसे कि द क्राइंग चाइल्ड, द क्राइंग चाइल्ड वोक मी अप. द क्राइंग चाइल्ड वोक मी अप. तो अल्टीमेटली व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे चाइल्ड है, और चाइल्ड का कौन सा चाइल्ड? वो वाला बच्चा जो रो रहा था. ठीक है ना? तो जो क्राइंग है, ये क्राइंग क्या हो गया? दिस क्राइंग इज एन एडजेक्टिव. यहाँ पे क्राइंग का यूज अपन लोग किसकी तरह कर रहे हैं? एक एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं. कौन सा बच्चा? वो जो रो रहा था. ठीक है ना? उसके रोने की वजह से आई गॉट डिस्टर्ब. और ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड क्या हो गया? ये चाइल्ड हो गया मेरे पास नाउन. है ना? ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड क्या हो गया? ये चाइल्ड हो गया मेरे पास नाउन. तो अल्टीमेटली जो क्राइंग है, ये क्राइंग है, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है. तो अब मेरा यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार. ये रूल नहीं था आप लोगों का पॉजिटिव एडजेक्टिव का, लेकिन मेरे को आप लोग को बताना था, इसके लिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा यहाँ पे. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट. ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, द काउंट ऑफ 3 आई एम गोइंग टू चेंज एवरीथिंग. ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3. लुक. सो व्हाट डू वी हैव? ओके, सो व्हाट इज द रूल बेसिकली? जो रूल है, वो रूल ये है कि मान लीजिए अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बनो. ठीक है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कौन से है? इट इज व्हाट? इट इज जीरन. अगर आप लोगों को कभी भी जीरन दे रखा हो, और जीरन के पहले अगर आप लोग कभी भी किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हो, तो ये जो प्रोनाउन है, ये हमेशा कौन सा प्रोनाउन होगा? दिस प्रोनाउन शुड रिमेन. दिस प्रोनाउन शुड रिमेन. नहीं, शुड नहीं, शुड इज रॉन्ग वर्ड हो गया. मस्ट रिमेन. क्या होना चाहिए? मस्ट रिमेन इन पॉजेसिव एडजेक्टिव केस. इसमें रहेगा ये रहेगा आप लोग का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के अंदर. ठीक है? अगर आप लोग कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में जीरन का यूज कर रहे हो, और जीरन के पहले अगर आप लोग के पास कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, तो जो प्रोनाउन है वो किस में रहेगा? वो रहेगा आप लोग का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के अंदर. किस में रहेगा वो रहेगा आप लोग का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में. भाई क्या, कैसे? एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ, देखिए आप लोगों के पास एग्जाम्पल में दे रहा हूँ. आई वेंट टू अ पार्टी. ठीक है ना? एंड ओवर देयर इन दैट पार्टी व्हाट हैपेंड, देयर इज, ये मैं हूँ बहुत अच्छा सा सुंदर सा ऐसे हंसता हुआ. थोड़ा सा गंदा सा मुंह बन गया, लेकिन चलता है. ठीक है ना? ये मैं बहुत प्यारा सा हंसता सा बच्चा हूँ. ठीक है? और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मेरे पास दोस्त था एक. आप लोग इस दोस्त की क्या करना था? आप लोग ऐसे मूछे भी बना देते हैं, और ये भी हंस रहा था. ये भी हंस रहा था, कम वक्त है ना? और यहाँ पे क्या आई? यहाँ पे आई हमारे पास एक लड़की, एक बहुत प्यारी सी, एक देयर वाज अ गर्ल. ठीक है? अब अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? आई बिगन नोटिसिंग दिस गर्ल. आई बिगन व्हाट? आई बिगन नोटिसिंग दिस गर्ल.
और ये जो फ्रेंड था, ये फ्रेंड क्या कर रहा था, दिस फ्रेंड वाज नोटिसिंग मी। ये जो फ्रेंड था ये क्या कर रहा था, ही वाज नोटिसिंग मी। आई वाज नोटिसिंग दिस गर्ल एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन ही वाज नोटिसिंग मी। ठीक है, तो इसके ऊपर बेसिक सेंटेंस मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ। देखो, माई फ्रेंड noticed me noticing her. Noticing her. So what happened? My friend noticed me noticing her. So what is the error in this particular statement? क्या error क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो error है वो ये है कि देखो, ये जो नोटिस हो रहा है, नोटिस तो क्या हो गया, नोटिस कौन कर रहा है, फ्रेंड कर रहा है। ये जो नोटिस है ये क्या हो गया, इट बिकम्स वर्ब। ये क्या हो गई, ये हो गई अपने पास वर्ब। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है नोटिसिंग। ये जो नोटिसिंग है, नोटिसिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। नोटिसिंग क्या हो गया, नोटिसिंग हो गया मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के पहले अगर मैं कभी भी किसी भी प्रोनाउन का यूज करता हूं, तो ये जो प्रोनाउन है कौन से केस में रहेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव केस में। तो यहाँ पे मैं मी का यूज करूंगा क्या, नहीं, कत्ता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस ओवर हियर। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट एम आई गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज माय। व्हाट हैपेंड, माय फ्रेंड वाज देयर and my friend noticed what, my friend noticed my noticing her। My friend noticed my noticing her। मेरा जो फ्रेंड था वो क्या कर रहा था, he was noticing, he was noticing my noticing her। ये जो लड़की थी इसको मैं नोटिस कर रहा था, और मेरा जो दोस्त था वो किसको कर रहा था, वो नोटिस कर रहा था मेरे को। तो जो मेरा फ्रेंड था ये मेरे को पूरे को नोटिस नहीं कर रहा था, he was noticing my looking at her। ठीक है, ये है इसका आंसर हुआ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप लोगों को ये स्टेटमेंट दे रखा हूं, आई डोंट लाइक you coming late to the class। I don't like you coming late to the class। मान लीजिए आप लोग को ये अलग स्टेटमेंट गिवन है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे क्या रहा है, कमिंग लेट, कमिंग लेट, कमिंग लेट। ये जो कमिंग लेट है ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस ही आप लोगों के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो हम लोग यहाँ पे यू का यूज करेंगे क्या, नहीं, हम लोग यू का यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह किसका यूज किया जाएगा, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे योर का। व्हाट आर वी गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज योर। हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज योर ओवर हियर। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। एट द काउंट ऑफ 3 आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग। ठीक है, तो वी हैव व्हाट, वी हैव 1, देन व्हाट डू वी हैव, व्हेन वी हैव 2, एंड देन वी हैव व्हाट, देन वी हैव 3। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। लुक नाउ पजेसिव प्रोनाउन केस। तो अगर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन केस की बात करते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन केस होता क्या है, व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन केस, वो अपन लोग देखते हैं। देखो पजेसिव, व्हाट पजेसिव प्रोनाउन केस, इसके लिए होता क्या है, व्हाट इज दिया। यहाँ पे अगर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास होगा एक प्रोनाउन, और वो जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन के साथ आप लोग का जो नाउन है वो अटैच्ड होगा। और ये नाउन कौन से फॉर्म के अंदर अटैच होता है, ये एस के फॉर्म के अंदर अटैच होता है। ठीक है ना, इट इज अटैच्ड एज एन एस। देखो मान लीजिए अगर अब मैं लिख रहा हूँ द फोन kept on the table, the phone kept on the table is mine। ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइन है, व्हाट दिस माइन मीन्स, ये जो माइन है इस माइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माय, और माय के साथ मैं किसका यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फोन का। तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस फोन इज अटैच्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। ये जो फोन है ये इसके अंदर अटैच्ड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करें, पॉसेसिव प्रोनाउन का। ओके, या फिर योर्स इज अ डेनिम शर्ट, योर्स इज अ डेनिम शर्ट। ये मेरे को दे रखा है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू मी। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर्स। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं योर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो योर्स है, योर्स क्या हो गया, इट इज योर। अब इस वाले स्टेटमेंट के अंदर किसकी बात हो रही थी, प्राइमरली वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी वर टॉकिंग अबाउट शर्ट। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी वर टॉकिंग अबाउट शर्ट। ये जो शर्ट है, ये शर्ट क्या हो गई, ये शर्ट हो गई हमारे पास नाउन। ये जो शर्ट है, ये शर्ट क्या हो गई, ये शर्ट हो गई हमारे पास नाउन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो योर है उसके अंदर अपन लोग किसका यूज करें, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर नाउन ओवर हियर, एंड सिंस वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर नाउन इट मींस ये जो एस है, ये एस किसके लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है शर्ट के लिए। योर शर्ट इज अ डेनिम शर्ट, योर शर्ट इज अ डेनिम शर्ट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, समझ में आया आप लोग को, इतना सा थोड़ा सा समझ में आया।
और देखते हैं, देखो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, तो मेरे को फटाफट से बताओ कि जो स्टेटमेंट है ओवर हियर व्हिच इज रिटन ओवर हियर, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, टेल मी दैट क्विकली 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 आंसर, आई वांट योर आंसर। तो वेदर दिस आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, इज इट करेक्ट और नॉट, क्या ये करेक्ट है या गलत है, बताओ फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट 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 बताओ। तो यस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आवर्स है, ये आवर्स किसको, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर आवर्स, इस आवर्स का मतलब होता है आवर, और आवर के साथ अपन लोगों ने यहाँ पे जो नाउन है उस नाउन का यूज ऑलरेडी करा हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, इट इज कंट्री, कौन सी नाउन है हमारे पास कंट्री, जो है कंट्री इज एक्टिंग एज अ नाउन ओवर हियर, since country is acting as a noun over here, it means we are talking about our country is a great country, our country is a great country, ये जो हमारा country है वो क्या है, it is what, it is a great country, understood everybody, समझ में आया आप लोगों को, चलो वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं आप लोगों को इस वाले सेट के अंदर एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन से वाले स्टेटमेंट में क्या एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, फिर हम लोग इसका जो लेवल अप करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, स्पेशल क्लास के अंदर, तो यू हैव टू कम टू माय स्पेशल क्लास, रिमेंबर दैट, डोंट स्किप माय स्पेशल क्लास। You and myself will enjoy the party to be arranged in honor of the new chief minister. So what is the action being done over here? This enjoy is the action which is being done here. ठीक है ना, कौन सा एक्शन हो रहा है, एंजॉय हो रहा है। अब अल्टीमेटली एंजॉय कौन कर रहा है, यू एंड मी। पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है, एंजॉय करना क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, एंजॉय करने से तो अपने को खुशी मिलती है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंस अपन लोग यहाँ पे पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्या होगा, पहले आप लोग रखोगे किसको, सेकंड पर्सन को, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा आप लोगों के पास फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग यू एंड माई सेल्फ की जगह यहाँ पे यूज करेंगे यू एंड आई, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सुना होगा ना आप लोगों ने, मैं बहुत गंदा गाता हूँ, वेरी सॉरी अगर आप लोगों के कान में से खून निकल गया हो, वेरी सॉरी फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर। लेट हर एंड, अब देखो लेट दे रखा है आप लोगों को, अगर आप लोग के पास लेट हो तो लेट के बाद हमेशा किसका यूज होगा, लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आप लोग यूज कर रहे हो वो प्रोनाउन हमेशा रहता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव केस में, वो प्रोनाउन हमेशा किस में रहता है, वो प्रोनाउन हमेशा रहता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव केस में। सिंस ये प्रोनाउन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव केस में रहता है तो क्या हो जाएगा आप लोग का स्टेटमेंट, लेट हर एंड मी, क्या हो जाएगा स्टेटमेंट आप लोग का, लेट हर एंड मी प्ले हॉकी। ओके, लेट हर एंड मी प्ले हॉकी। इफ आई वर यू, ये वाला एग्जांपल तो भाई आप लोग बताओगे इसके अंदर यहाँ पे अपन लोग किसका यूज करने वाले हैं, बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ। इफ आई वर डैश, इस वाले स्टेटमेंट को समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, इफ आई वर, ये क्या मतलब होता है भाई, आई के साथ अपन लोग वर का यूज कब करते हैं भाई, आई के साथ तो मैं एम का यूज करता हूँ या वॉस का यूज करता हूँ, यहाँ पे तो वर दे रखा है, तो क्या वर गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया आप लोग का हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी स्टेटमेंट, इमेजिनरी स्टेटमेंट। ओके, ये एक ऐसी कंडीशन आप लोग को बता रहा है जो कि क्या है, जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। आई कैन नॉट बिकम यू यार, मैं कभी भी आप लोग, मैं आपकी तरह थोड़ी बन सकता हूँ। तो जब भी ये चीज आती है, जब भी आप लोग इसका यूज करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, आप लोग किसका यूज करेंगे, देखो इफ आई वर हर आई शुड हेल्प यू। यहाँ पे आई जो है वो आई तो क्या हो गया, ये तो हो गया आप लोग का सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा आप लोग के पास ऑब्जेक्ट, और फिर फर्दर आप लोग को दे रखा है आई शुड हेल्प, और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा आप लोग के पास ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली अपन लोग किसका यूज करें, इफ आई वर हर आई शुड हेल्प यू। देर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, भाई साहब बिटवीन दे रखा है तो बिटवीन के बाद क्या आएगा, यू एंड हिम, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे देगा यू एंड हिम। वन शुड ओबे, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, वन है, ध्यान रखना पॉसेसिव केस के अंदर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अगर आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, अगर आप लोगों को कभी भी वन दे रखा हो तो वन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वंस, वन के साथ अपन लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, हम लोग हमेशा वंस का यूज करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों को कभी भी वन दे रखा हो तो वन के साथ आप लोग हमेशा वन का ही यूज करते हो, वन के साथ आप लोग कभी भी ही शी इट दे का यूज नहीं करोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है हो जाएगा आप लोग का, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा वंस एल्डर्स।
इट वॉज, आप लोगों ने करा था। आप लोगों ने अगर नहीं करा हो, अगर आप लोगों को ये वाली बात पता नहीं हो, अगर आप लोगों को ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट नहीं पता हो, तो आप लोगों को पहले वाला लेक्चर देखना है। पहले वाले लेक्चर पे जाओ, पहले वाले लेक्चर को देखो। इट वॉज वॉट, इट वॉज आई, इट वॉज हु, इट वॉज आई, इट वॉज आई हु टेलीफोन यू yesterday, इट वॉज आई हु टेलीफोन यू yesterday, इट वॉज आई हु टेलीफोन यू yesterday. This pen is mine. This pen is mine, and that is yours. That is yours. अभी भी लोगों ने पढ़ा है. Ram and Mohan always. Ram and Mohan help me always. Ram and Mohan does what? Ram and Mohan do what? Ram and Mohan help me always. You. अच्छा ये अपन लोगों ने अभी करा नहीं है. अपन लोग इसको करेंगे बाद में. ओनली यू एंड डैश, यू एंड मी नहीं होगा. देखो एग्जाम्पल यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, कैन डू. दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्शन. इसका मतलब यहाँ पे अपन लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे अपन लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे. ओके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन लोग सब्जेक्ट का यूज करें, तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा वो कौन से केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में. तो यहाँ पे देगा ओनली यू एंड आई कैन डू दिस वर्क. ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आप लोग इसका लोगे स्क्रीनशॉट. इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसके आंसर्स मेरे को कहां पर भेजोगे. आप लोगों को इसके आंसर्स मेरे को भेजने हैं गौरव भाटिया. कहां पे आप लोगों को भेजने मेरे गौरव भाटिया के ऊपर. गौरव भाटिया आगे क्या है, गौरव भाटिया अनअकैडमी. ओके यू आर गोइंग टू सेंड मी द आंसर्स ओवर देयर. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अगर आप लोग मेरे को आंसर भेजते हो तो आई वुड बी वेरी मच हैप्पी, आई वुड बी वेरी मच एनकरेज्ड, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू मोर लेक्चर्स लाइक दिस. ठीक है, तो बस आज के लिए अपन लोग करें इतना ही. आप लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पे. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है लेक्चर पसंद आया हो. अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक दिस और शेयर दिस एंड सब्सक्राइब to our channel, which is CAT for MBA. Before leaving, I want to tell you that if you people are preparing for CAT 2021, this particular batch is meant for you, and you are going to get 10% off on 6 months of subscription. And you are going to get what? You are going to get that only and only that you are going to get around 430 rupees off. ठीक है, एक पिज्जा आ जाएगा आप लोगों का. और पिज्जा खाते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, पिज्जा खाते हुए आप लोग देख सकते हो टेस्ट. हर वीक आप लोगों को मिलेंगे 2 टेस्ट. एंड आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जो मॉक्स है अपन लोगों के लिए, मॉक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिना मॉक्स के आप लोग कितना भी पढ़ लो, आप लोगों का कितना भी सिलेबस पूरा हो जाए. देखो एक तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होना. ठीक है, एंड ये सिलेबस पूरा होना स्कूल के अंदर होता था, स्कूल के बाद कॉलेज के अंदर भी सिलेबस पूरा नहीं होता, और आगे आप लोग के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनका भी कुछ डिफाइंड सिलेबस नहीं होता. तो सिलेबस को छोड़ो, आप लोग के जो भी सेट है उन सेट को पहचानो कि आप लोगों की जो स्किल सेट है वो स्किल सेट क्या क्या है, व्हाट स्किल सेट डू यू हैव, और जो स्किल सेट है उसको आप लोग इंप्रूव करो, ताकि वहां पे अगर आप लोगों के स्किल सेट में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट दैट. मेरी ग्रामर अच्छी है तो मैं ग्रामर को अटेम्प्ट करूंगा, मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो मैं कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करूंगा. भाई मेरा अरिथमेटिक अच्छा है तो मैं अरिथमेटिक को तो इतना अच्छा करके जाऊं कि वहां पे कोई भी अरिथमेटिक का कितना भी डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू राइट इट, आई शैल बी एबल टू डू इट करेक्टली. इतना तो हो. तो ये चीज आप लोगों को करनी है. कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा स्किल सेट क्या है, भाई जब मॉक दोगे. मॉक कहां से मिलेगा, यहां से आप लोग को मिलेंगे मॉक, एंड दैट इज वेरी चीप. So please and use my referral code which is CADGirl. अगर आप लोग मॉक के लिए, if you people are availing yourself, please use my code which is CADGirl. तभी 10% ऑफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. And please subscribe to our channel which is CAT for MBA, and please like this video and share it. Thank you. Thanks a lot people. Bye. See you. शब्बा खैर और जय हिंद जय भारत.